Good morning, dear students. So, this is the part 5 of digestive system. In last part 4, we have discussed about the structure of liver and pancreas, the structures, functions, blood supply, nerve supply, and all. In this video, we will discuss about the small intestine. The small intestine or small bowel is the part of the gastrointestinal tract between the stomach and the large intestine or colon and is where most of the and absorption of food take place. मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन या इसको स्मॉल बॉवेल भी कहते हैं. ये स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है. लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी कहते हैं और इसका मेन जो फंक्शन है वो है फूड में से न्यूट्रिएंट सब्सटेंस और वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना. इसके साथ साथ यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल डाइजेशन भी होता है. नेक्स्ट वन, द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 meter or you can say 21 feet. Diameter approximately 2.5 to 3 centimeter or 1 inch. The small intestine is divided into 3 parts. 3 भाग हैं इसके. पहला ड्यूडेनम, सेकंड वन जेजेनम एंड लास्ट वन इज द इलियम. ड्यूडेनम वो पार्ट है जो स्टमक से स्टार्ट होता है और जेजेनम तक जाता है. ये सी शेप होता है एंड जेजेनम मिडिल पार्ट है जो ड्यूडेनम से स्टार्ट होकर के इलियम तक एंड होता है एंड इलियम लास्ट पार्ट है जो जेजेनम से स्टार्ट होकर के कॉलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग कॉलोन के सीकम पार्ट में जाके ओपन होता है. See the parts. The small intestine is divided into 3 structured parts. First one, the duodenum. Second one is the jejunum. Third one is the ileum. The duodenum is a short structure running from 20 centimeter to 25 centimeter in length and shaped like a C shape. The jejunum is the midsection of the small intestine connecting the duodenum to the ileum and it is about 2.5 meter long. And the third one is the ileum. It is the final section of the small intestine. It is about 3 meter long and contain villi similar to the system and similar to the jejunum, and it connect the jejunum to cecum, means first pouch of ascending colon. Functions of small intestine. First one is the digestion. The small intestine is where most chemical digestion take place. Means जितना भी chemical digestion होना है, हमने digestion की 2 phase पढ़ी थी. First one physical digestion, second one is the chemical digestion. Physical digestion में हमने देखा था जो mastication कहा था, पीसना. Means food के large particles को small particles में break down करना is called physical digestion. Means the conversion of large particle of food into small particle is called mechanical digestion. And the second phase of the digestion is the chemical digestion. Means जो फूड के छोटे छोटे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना इज द केमिकल डाइजेशन. मीन्स कन्वर्सेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल मीन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल और सिंपलर सब्सटेंस ऑफ nutrients is called chemical digestion. So first one function of the small intestine is chemical digestion of food. Second one, many of the digestive enzymes that act in the small intestine are secreted by the pancreas and liver and are entered the small intestine via the pancreatic duct. Means केमिकल डाइजेशन के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है. एंजाइम्स आर लाइक एज सम केमिकल्स. ये फूड को केमिकली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. मींस जो फूड के न्यूट्रिएंट्स के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. तो जो मेजर केमिकल सब्सटेंसेस हैं एंजाइम्स हैं वो सीक्रेट किए जाते हैं लिवर, पैंक्रियास के द्वारा, स्टमक के द्वारा भी, और इंटेस्टाइन इटसेल्फ आल्सो सीक्रेट सम enzymes who help in the digestion, chemical digestion of food. ये एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सीक्रेट किए जाते हैं बाय द लिवर और बाय द पैंक्रियाज. दोनों लिवर मिलकर के कॉमन डक्ट बनाते हैं, इसे कहते हैं हेपेटो पैंक्रेटिक डक्ट. ये कि पैंक्रेटिक एम्पुला के थ्रू ड्यूडेनम में खुलती है. ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर ये फूड का केमिकल डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एंजाइम्स.
Second one most important function of the small intestine is the absorption. Digested food is now able to pass into the blood vessels in the wall of the intestine through entire diffusion or active transport. After chemical digestion, the complex substance of food are converted into simple substances of food. These substance now ready to absorb means अब ये एक वॉल को क्रॉस करके दूसरी स्ट्रक्चर की वॉल से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में जाने में एबल होते हैं। एक वॉल कौन सी? पहली वॉल है इंटेस्टाइनल वॉल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके अंदर विलाई, माइक्रोविलाई बहुत सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, उनको क्रॉस करके ये अब लार्ज विलाई के अंदर प्रेजेंटेड ब्लड वेसल से ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, उस ब्लड फ्लो में, ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंसर्ट हो जाती है, मीन्स एब्जॉर्ब हो जाती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड। मीन्स एक इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा पार्ट है जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन सपोर्ट्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी बॉडी एक इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी, इम्यूनोलॉजिकल रोल प्ले भी करती है, जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करता है, मीन्स माइक्रोब्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है। द प्रेजेंस ऑफ गट फ्लोरा अपीयर्स टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द होस्ट इम्यून सिस्टम। इसके साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर में आपको कुछ बताना चाहूँगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर जो है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर में ये एक छोटी सी फूड पाइप है। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और डायमीटर बहुत कम होता है। इसकी स्ट्रक्चर भी डाइजेस्टिव सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनी होती है। यहाँ पर भी वही 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। इन 4 लेयर में सबसे अंदर वाली है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर उसके ऊपर मस्कुलरिस होती है और उसके ऊपर होती है एक फाइब्रस लेयर। तो जो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर हैं, जो कि इंटरनल लाइनिंग लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स के अंदर छोटे छोटे फोल्ड्स बने होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इन्हें हम विलाई कहते हैं। और इन विलाई के ऊपर, इन प्रोजेक्शंस के ऊपर और एक और छोटी छोटी माइनर प्रोजेक्शंस होती हैं, इन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है। इन विलाई और माइक्रोविलाई के अंदर, क्योंकि वेरिएबल मस्कुलर लेयर के अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है, उस ब्लड सप्लाई में से छोटी छोटी ब्रांच जिन्हें ब्लड कैपिलरीज का आता है, वो इन विलाई और माइक्रोविलाई के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। इन विलाई और माइक्रोविलाई की जो लेयर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, बिकॉज ये सिंगल एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर होने की वजह से ये क्या कहते हैं, जिसमें से इजीली डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाता है, एक परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जिसकी वजह से यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो पाता है। यही कारण है कि इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। मीन्स ये कह सकते हो कि हमारे टोटल एब्जॉर्प्शन का 90 to 95% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। These villi and microvilli look like as a African घास. Now the blood supply to the small intestine. The blood supplied to the small intestine by the coeliac trunk and the superior mesenteric artery, and the mesenteric arteries are the direct branch of abdominal aorta, and venous drainage by the superior mesenteric vein, which opens into the hepatic portal vein. Next one is the large intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में नेक्स्ट वन पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। वो फूड तो नहीं कह सकते हम इसको, स्टमक, जब हमने इसको इंजेस्ट किया था ये फूड था, जब इसको मैकेनिकल डाइजेस्ट किया, सैलावा मिक्स हो गया, तो ये फूड कन्वर्ट इनटू बॉलस। अब ये बॉलस जब फायरिंग्स और ईसोफेगस होते हुए स्टमक में पहुंच जाता है और एचसीएल के साथ मिक्स होता है, नाउ इट्स कॉल्ड काइम। अब जब ये काइम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है, अब ये काइम का मैकेनिकल डाइजेशन भी हो चुका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, इसके बाद इसे पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलोन में। तो आगे हम देखेंगे इस काइम का क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज लार्ज बॉवेल और कोलोन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स।
Water is absorbed here and the remaining waste material is stored as feces or fecal material before being removed by the defecation. Means यहाँ पर बचा हुआ absorption approximately 10 to 5%, 5 to 10% वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बचे होते हैं, इनका कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और बचे हुए फीकल मटेरियल को या फेसिस को, स्टूल जिसे स्टूल कह देते हैं हम, उसे स्टोर कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट जिसे हमने रेक्टम कहा है। सॉरी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यू कैन सी first this pink color part is the ileum. It's the last part of the small intestine which opens into the large intestine. Large intestine divided into main 6 segments, 6 parts, and those are: first one cecum, transverse colon, cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoidal colon, and rectum. So the ileum just drain these remaining unabsorbed, undigested and material into the cecum, and the cecum connected with the ascending colon connected with the transverse colon, and transverse colon connected with the descending colon, and descending colon connected with the sigmoidal colon, and sigmoid colon connected with the rectum, and rectum drain their feces or fecal material into the anal canal or anal content, defecate it out from the body by the help of anus. See, structure of the large intestine. The length of male colon is 166 centimeter, and in the females the length of the colon is 155 centimeter. The colon consists of 5 sections: cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, and rectum. Section of colon are the ascending colon, including the cecum and appendix. Yes, जो असेंडिंग कॉलोन है, उस कॉलोन की जो स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे पाउच से मिलकर के बनी होती है, एंड द फर्स्ट पाउच ऑफ द सीकम इज कॉल्ड, द असेंडिंग कॉलोन इज कॉल्ड सीकम, जहाँ पर एलियम की ओपनिंग होती है। मींस स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है या जिसके अंदर थोड़ा बहुत मटेरियल नहीं कि फूड न्यूट्रिएंट्स और वाटर रह गया है, वो मिक्सड होता है, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज पार्ट एलियम के द्वारा सीकम में छोड़ा जाता है थ्रू इलियोसीकल वाल्व। और इस सीकम के नीचे एक वर्मीफॉर्म स्ट्रक्चर लगी होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये वैसे तो नॉर्मली से वेस्टिजियस ऑर्गन कहा जाता है, लेकिन ये वेस्टिजियस ऑर्गन नहीं होता। इसके द्वारा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जो हमारी बॉडी सीकम के अंदर स्टोर्ड मटेरियल में जो बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट है उससे किल करने में हेल्प करता है। यू कैन से कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मीन्स इट्स प्ले ए इम्यूनोलॉजिकल रोल। द ट्रांसवर्स कॉलन इंक्लूडिंग द कॉलिक फ्लैक्सर एंड ट्रांसवर्स मेसोकोलन। यहाँ पर 2 फ्लैक्सर होते हैं, सी इन द डायग्राम। फर्स्ट वन, दिस वन इज राइट कॉलिक फ्लैक्सर, इसे हेपेटिक फ्लैक्सर भी कहा जाता है। दूसरा होता है लेफ्ट कॉलिक फ्लैक्सर, इसे स्प्लिनिक फ्लैक्सर भी कहा जाता है। इनको हेपेटिक फ्लैक्सर और स्प्लिनिक फ्लैक्सर क्यों कहते हैं? क्योंकि राइट कॉलिक फ्लैक्सर प्रेजेंट होता है एट द साइट ऑफ लिवर, दैट्स व्हाई वी कॉल हेपेटिक फ्लैक्सर, और जो लेफ्ट कॉलिक फ्लैक्सर होता है दैट प्रेजेंट एट द साइट ऑफ स्प्लिन, दैट्स व्हाई वी कॉल स्प्लिनिक फ्लैक्सर। The descending colon convey, see, फर्स्ट जैसे ही इलियम से जो फीकल मेटेरियल बचा हुआ था वो आया किसके अंदर? सीकम में। इलियम में स्मॉल इंटेस्टाइन से बचा हुआ फीकल मटेरियल इलियम के द्वारा इलियोसिकल वाल्व से होते हुए सीकम आ जाता है। सीकम उसको स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद में सीकम से वो ट्रांसफ़र किया जाता है असेंडिंग कॉलन में। अब धीरे धीरे असेंडिंग कॉलन में जाएगा और असेंडिंग कॉलन से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसको ट्रांसवर्स कॉलन में। अब ट्रांसवर्स कॉलन में चलने के बाद में ये आता है डिसेंडिंग कॉलन के अंदर। डिसेंडिंग कॉलन मीन्स ये
ट्रांसवर्स कॉलम से फीकल मटेरियल को लेके आती है और पहुंचा देती है सिग्मोइडल कॉलम तक। सी, इनका नाम किस बेसिस पर है? असेंडिंग कॉलम। असेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, है ना, अपग्रेडेड नंबर। सो सीकम के अंदर जो फ्लो है, सॉरी असेंडिंग कॉलम के अंदर जो फ्लो है फीकल मटेरियल का, वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, नीचे से ऊपर की ओर। इसीलिए ये बढ़ते हुए क्रम में, इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट ये जो फीकल मटेरियल वो चल रहा है, मीन्स ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया असेंडिंग कॉलम। ट्रांसफर कॉलम, इसमें ट्रांसफर चल रहा है राइट टू लेफ्ट, इसलिए इसको कहा ट्रांसफर कॉलम। डिसेंडिंग कॉलम, डिसेंड करना, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मीन्स ऊपर से नीचे आना, इसीलिए इसका नाम है डिसेंडिंग कॉलम, क्योंकि यहाँ पर जो फिकल मटेरियल का मूवमेंट है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट वन इज द सिग्मॉइड कॉलम, द एस शेप्ड रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका स्लाइटली एस शेप रीजन मीन्स लास्ट पार्ट ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड, लास्ट नहीं कह सकते, इससे पहले इसके बाद में एक और पार्ट आता है दैट इज द रेक्टम, बट जो कोलोनल स्ट्रक्चर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसका लास्ट पार्ट है और इसे कहते हैं सिग्मॉइड कॉलम। यहाँ पर फिकल मेटल का मूवमेंट होता है ऑब्लिकली लेफ्ट साइड टू राइट साइड। द एवरेज इनर डायमीटर ऑफ द सेक्शन ऑफ द कॉलम इन सेंटीमीटर्स, सीकम 8.7 सेंटीमीटर डायमीटर, असेंडिंग कॉलम का डायमीटर होता है 6.6 सेंटीमीटर एंड ट्रांसवर्स कॉलम का डायमीटर है 5.8 सेंटीमीटर। डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कॉलम का डायमीटर होता है 6.3 सेंटीमीटर एंड रेक्टम नियर रेक्टल सिग्मॉइड जंक्शन 5.7 सेंटीमीटर। इसके आगे इसका डायमीटर बढ़ जाता है बिकॉज ये पाउच है और रेक्टम का डायमीटर चेंज होता रहता है जैसे जैसे इसमें स्टूल फिल होता जाएगा, मींस फीकल मेटेरियल फीसेस फिल होते जाएंगे, इसका डायमीटर बढ़ता चला है, मीन्स ये स्ट्रेच होता है। जैसे ही डिफिकेशन के थ्रू स्टूल को या फीकल मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है या फिर फीसेस को अवॉइड कर दिया जाता है, उसके बाद इसका डायमीटर कम हो जाता है। बट जो जहाँ पर रेक्टो सिग्मॉइडल जंक्शन है वहाँ पर इसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर फिक्स्ड रहता है। The cecum. The cecum is the first section of the colon and involved in the digestion, while the appendix is a structure of the colon not involved in the digestion. Cecum ascending colon का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर इलियम के द्वारा इलियोसिकल जंक्शन इलियोसिकल वाल्व के थ्रू फीकल मटेरियल को सीकम में छोड़ा जाता है, जहाँ पर इसका किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता, केवल यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किया जाता है कि इस फीकल मटेरियल में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। और ना केवल सीकम में बल्कि पूरे होल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर केमिकल डाइजेशन है बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है, इसे हम ना के बराबर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बचा हुआ 5 to 10% एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ सीकम के साथ एक स्ट्रक्चर वर्मीफॉर्म स्ट्रक्चर भी अटैच रहती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता, ये इम्यूनोलॉजिकल रोल प्ले करती है, ये यहाँ पर प्रेजेंटेड बैक्टीरियल फ्लोरा को ख़त्म करती है। द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इज अनसर्टेन। कंटेनिंग इलियोसिकल वाल्व मीन्स सीकम के अंदर एक इलियोसिकल वाल्व होता है जो कि सीकम और इलियम के बीच में प्रेजेंट होता है, जो इलियम से आने वाले फीकल मटेरियल के फ्लो को कंट्रोल करता है। The ileocecal valve is a sphincter muscle valve that separates the small intestine and the large intestine. जो इलियोसिकल वाल्व है वो एक स्पिंक्टर है, नॉट कंप्लीट वाल्व, ये एक स्पिंक्टर होता है। स्पिंक्टर्स कहते हैं हम मस्कुलर फोल्ड्स को, इट्स ए फॉल्स वाल्व भी कह सकते हैं। ये मसल्स के फोल्ड होते हैं जो कि एक वाल्व की तरह काम करते हैं, मीन्स इनका जो रोल है, इनका जो फंक्शन है वो सेम एज ए वाल्व होता है। और ये इलियोसिकल वाल्व सेपरेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, मीन्स इलियोसिकल वाल्व से पहले वाला पोर्शन कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियोसिकल वाल्व के बाद का पोर्शन कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। द क्रिटिकल फंक्शन is to limit the reflux of colic contents into the ileum. The critical function is to limit the reflux of colic content into the इलियम। जो क्रिटिकल फंक्शन जो इस सीकम का फंक्शन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। वो क्या है कि जितने रिफ्लक्स आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स और वेव्स बहुत हैवी होते हैं, तो ये उन रिफ्लक्स को मीन सेम रिफ्लक्स के साथ में सेम मूवमेंट के साथ में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के साथ में फूड आगे ना निकल जाए, फीकल मटेरियल आगे ना निकल जाए। अगर वो उतनी स्पीड से आगे निकलेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन की रेट को अगर हम डिटरमाइन करें तो दो चीज़ों के साथ में कर सकते हैं, स्पीड और सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया कम होगा, एब्जॉर्प्शन रेट भी कम होगी। स्पीड ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन कम होगा। स्पीड स्लो होगी, एब्जॉर्प्शन कम होगा। स्पीड मीन्स मूवमेंट। मूवमेंट जितने फास्ट होंगे एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होता है, मूवमेंट जितने स्लो होते हैं एब्जॉर्प्शन उतना ही फास्ट होता है। मीन्स ये रिवर्स है, मूवमेंट फास्ट, एब्जॉर्प्शन स्लो, मूवमेंट स्लो, एब्जॉर्प्शन फास्ट, जबकि सरफेस एरिया में पैरेलल चलता है। नेक्स्ट वन, the ascending colon. It is connected to the small intestine by a section of bowel called the cecum. Means जो ascending colon है वो small intestine के साथ कनेक्टेड रहती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ असेंडिंग कॉलन का जो पोर्शन कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड सीकम. द असेंडिंग कॉलन रन्स अपवर्ड थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड द ट्रांसवर्स कॉलन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचेस और 20 सेंटीमीटर. मीन जो असेंडिंग कॉलन है वो ऊपर की तरफ फ्लो को लेके जाती है, मीन्स डाउनवर्ड टू अपवर्ड. दैट्स व्हाई वी कॉल असेंडिंग कॉलन, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड्स द ट्रांसवर्स कॉलन. और इसका जो फ्लो है फीकल मटेरियल का वो ट्रांसवर्स कॉलन से जाएगा, सॉरी असेंडिंग कॉलन से जाएगा ट्रांसवर्स कॉलन. और असेंडिंग कॉलन की लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 8 इंच और 20 सेंटीमीटर. यू कैन से द अनवांटेड वेस्ट मटेरियल इज मूव्ड अपवर्ड टुवार्ड्स द ट्रांसवर्स कॉलन बाय द एक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस. अब जो फीकल मटेरियल बचा हुआ था, अनवांटेड वेस्ट है जिसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं, ना के बराबर न्यूट्रिएंट्स हैं, उसे असेंडिंग कॉलन से ट्रांसवर्स कॉलन में पास कर दिया था. और जिन मूवमेंट्स के थ्रू इसे पास किया जाता है वो है पेरिस्टालटिक मूवमेंट्स. पेरिस्टालटिक मूवमेंट्स होल इंटेस्टाइन में चलते रहते हैं. दे आर स्टार्टेड फ्रॉम द फारिंक्स और ईसोफेगस टू रेक्टम एंड इवन एनल कैनाल तक ये मूवमेंट्स चलते हैं, जिनकी वजह से ये फूड पूरी इंटेस्टाइन, होल इंटेस्टाइन में मूव करता है. द पेरिस्टालसिस इज रेडियली symmetrical contraction and relaxation of muscles that propagates in a wave down a tube. ठीक है, ये क्या है? ये एक मस्कुलर मूवमेंट्स हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंटेड मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होते हैं. ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बराबर में आएंगे. मीन्स अगर कि इंटेस्टाइन की वन साइडेड वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो तो दूसरी साइड अपोजिट साइड वॉल भी साथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट होती है. मीन्स ये सर्कुलर वॉल कम्प्लीटली एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, इसीलिए इसे हम रेडियली सिमेट्रिकल मूवमेंट्स कहते हैं. और ये एक वेव जनरेट करते हैं जिसके थ्रू ट्यूब के अंदर, यानी कि इस फूड पाइप क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर फूड का मूवमेंट होता है. सो थैंक यू. दिस इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम आर रेक्टम एंड एनल कैनाल और एनस. सो रेक्टम क्या है? असेंडिंग कॉलन के बाद में आता है डिसेंडिंग कॉलन, और डिसेंडिंग कॉलन के बाद में आता है सिग्मोइड कॉलन, उसके बाद रेक्टम एंड एनल कैनाल और एनस. सो दीज रिमेनिंग थिंग वी विल डिस्कस इन टू द लास्ट वीडियो. थैंक यू.